Hello students, let's start the new chapter today, force and laws of motion. In this chapter we will study about the balance and unbalanced forces, first law of motion, second law of motion, third law of motion, inertia and mass. Inertia and mass, the mathematical expressions also, and here we can see, this is third law of motion and the conservation of momentum. So this is all about this chapter we will study. Let's start and begin. So first of all, what is force? Students, have you ever observed that we need to put some effort to make a stationary object move? Of course, we put a effort of push. We actually push or pull the object when we make the stationary object move. So this is a property of force. This type of we can say this is a force. A force is a push or a pull. हम force किसको बोलेंगे? push और pull करने की properties को बोलते हैं हम force. जब भी हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, इसको बोलते हैं हम फोर्स. सो हाउ डज एन ऑब्जेक्ट मूव? व्हाट इज फोर्स? whenever we push or pull an object, a force acts upon them and makes them move from one place to another place. So स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव करता है, मोशन में आ जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो हैंस फोर्स कैन इनिशिएट मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट. तो फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? वो क्या करता है? फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इनिशिएट द मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट. किसी भी मोशनलेस ऑब्जेक्ट में ये मोशन को इनिशिएट करता है. सेकेंड, चेंज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करता है. आपने पहले उसको पुश किया, इनिशियली उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बट थोड़े टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में वापस आ जाएगा. सो दैट मीन्स द इंक्रीज और डिक्रीज in the velocity of a moving object. Alter the direction of a object. तो ये क्या करता है? चेंज भी करता है. डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज भी करता है. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है. चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप जैसे बलून है, आपने लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स अप्लाई किया, राइट हैंड साइड से फोर्स अप्लाई किया, तो बेसिकली क्या हुआ? किस शेप और साइज में चेंज आया. सो ये क्या है? ये एक फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हेयर यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस. अ मैन यूजेस अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन mower. So you can see here a footballer uses a force to change the direction of a motion of a ball. A cyclist uses a bigger force to pedal his bicycle and increases its speed. A baker uses a force on his dough to shape it into a curry puff. So these are the different effects of the force. So there are two types of force, balanced force and the unbalanced force. What is balanced force? When an equal amount of forces are applied on an object from different directions, such that they can cancel out each other. So we can say that they are the balanced force. आप लेफ्ट हैंड साइड से भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं और राइट हैंड साइड से भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस क्या हो गए? इक्वल हो गए और कैंसिल आउट हो गए. तो इस फोर्स को क्या बोलूँगी मैं? बैलेंस फोर्स. सो दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये कोई भी आप मोशन कोई नहीं होगा इसमें, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं आएगा. ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर पाएगा, ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. दे मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट दिस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स. You can see here the cup of glass cup of glass is there on the table. Force is exerted by the table on the cup, and the weight, you can see here the weight force of gravity is also applied on the cup, and the force is also exerted by the table
on the cup. So this balances out each other and there is no change of state of motion. Now next is unbalanced force. When forces applied to an object are of different magnitude or do not in opposite direction so as to cancel. जब भी फोर्स अप्लाई होता है डिफरेंट मैग्नीट्यूड में और वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, अनबैलेंस फोर्स होते हैं, तो इसको बोलेंगे हम अनबैलेंस फोर्स. दे कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये एक्चुअली चेंज करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एंड ऑल्सो दे कॉज अ एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट. दे कैन कॉज द चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो. सो दिस इज़ एन अनबैलेंस फोर्स. सीसॉ पर एक बच्चा बैठा है, यहाँ पर एक एप्पल रखा है, तो बच्चे का वेट क्या है, ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से फोर्स कहाँ पर ज़्यादा अप्लाई होगा, इस साइड लेफ़्ट साइड ज़्यादा अप्लाई होगा और राइट साइड नहीं हो पाएगा क्योंकि एप्पल का वेट कम है, तो जिसकी वजह से फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पर लाई करेगा एंड द सीसॉ अल्टीमेटली मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द चाइल्ड. So basically this is also a unbalanced force, example of unbalanced force. So next topic is what is the force of friction. It is a force extended when two surfaces are in contact with each other. It always act in the direction opposite to the direction of motion of the object. आपने स्टूडेंट्स आप फॉर एग्जांपल आप एक बॉल को नॉर्मली फ्लोर पे रोल कराओ, ठीक है, आपने बॉल को फेंका फ्लोर पे, आप थोड़ी देर बाद देखोगे बॉल रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी? बिकॉज देर इज समथिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. देर इज समथिंग, एक फोर्स होता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. बेसिकली ये फोर्स क्या करता है, जो अगर डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रेजिस्ट करता है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करने की कोशिश करता है. सो बेसिकली जब भी, क्योंकि फ्लोर और ऑब्जेक्ट दोनों, एक फ्लोर और बॉल दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट विद ईच अदर हैं एंड इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. हमने बॉल फेंकी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरी क्या थी, सामने की साइड थी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स. एंड इट एक्चुअली ये क्या करेगा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन करेगा और अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि बॉल जो है रुक जाएगी अपनी पोजीशन पे, बॉल मूव नहीं करेगी. तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स. सो पुशिंग फोर्स इज इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मोशन इस साइड पे, राइट साइड में है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है. सो बेसिकली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. This first of law of motion we will study in the next class, and please read the book thoroughly so that we can start the first law of motion. Thank you. Have a nice day.